बहुत ही एक्सप्लिसिट टाइप के थ्रेट्स थे, कि केस छोड़ दो वरना तुमको जान से मार देंगे। बिग बॉस जीत के कोई झंडा तो नहीं गाड़ लेता है। About me and Vicky, so I was very shocked because I always considered him like a brother in the show. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है सना, जिन्हें आपने बिग बॉस में देखा है, बहुत सारे सेलिब्रिटी केसेस में देखा है, जो ये इतनी स्मार्टनेस के साथ जीत भी जाती हैं। सो सना, पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? I'm doing very well. How are you? ऑल गुड एकदम बढ़िया। सो क्या चल रहा है सना इन दिनों लाइफ में, केसेस के अलावा? अभी तो if you see I'm occupied with work only. केसेस के अलावा अगर पूछोगे तो हाँ, but I'm back from United States. I was in US. I was traveling. Traveling is my passion. तो वही बस अभी मैं काफ़ी 3 हफ्ते से मैं US में थी. I just returned to India and the moment I returned again, just occupied with cases after cases. सो केसेस की अगर बात करें तो किस टाइप के केसेस इन दिनों चल रहे? बिकॉज हेडलाइंस में तो हम पढ़ते ही रहते। आपके पास मतलब मुझे लगता है लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा आपसे कि हाँ प्लीज़ हमारा भी कुछ भला कर दीजिए। Yeah, I mean, I will not lie. Honestly, yes, मैं अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिलती हूँ. And I'm always very vocal about the fact that that I don't speak too much because my words are very expensive. I charge for each and every word that I utter. मेरे हर एक word की कीमत है. That's why my words are expensive and that's why my words are exclusive. सना, लोग आपका ग्लैमर देखते हैं, लोग आपके ड्रेसिंग स्टाइल से इम्प्रेस होते हैं, आपका मर्सिडीज़ में चलना लोगों को पसंद आता है, बट इन सारी चीज़ों के पीछे जो एक मेहनत होती है, जो एक हम कह सकते हैं जो हार्डवर्क होगा आपका, क्योंकि मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ भी आज आप है जो पोजीशन पे। कैसा था आपका मतलब ये जर्नी जो थी यहाँ तक पहुँचने की? Absolutely beautiful journey, honestly, and still a long way to go. But up until now, also, if I just see, like whatever has just happened has happened. Like I mean, owing to my dedication and passion. Law has always been my passion. To be very honest, like even when I was in college, I was holding a movie producer's contract because I became the college queen when I was in college, and उसके बाद मुझे contract भी मिला था. But I still just decided to pursue my legal degree and not like a safety net to fall back on. Like sometimes people say हाँ degree करना ज़रूरी है to fall back on. For me it was never that case. For me it was my passion. मेरे लिए ये था कि जुनून है. Law means जुनून, and that's like my calling. And then I did my masters and I'm a gold medalist in my masters also. So of course अगर आप देखोगे glamorous ये सब चीज़ें तो adjectives है जो add होती है, but for me मेरे तो मतलब behind those huge books I spent so much time every day, like doing research also, doing my, and that too meticulously, हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ना, हर एक चीज़ों को बारीकी से कोर्ट के सामने पेश करना और उतना रिसर्च करना, स्टडी करना, और books are of course my love, which my reading is my love, reading is my passion. ये सारी चीज़ें, ये सब तो मेरी जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है. तो इस तरह से रही है. एंड you can say in fact I worked smart also rather than just saying hard work, because while I was a student I started interning. I started doing my internships. Like usually कुछ कभी ऐसा होता है कि आप जब बन जाते हो प्रोफेशनल तब आप इंटर्नशिप करते हो, फिर उतना टाइम जाता है. I started doing my internship while I was a student because I did not believe in wasting time. Then the moment I passed out, I became a lawyer. I started my own, which was a very difficult and very surprising aspect for many people. Were like, "Arey, why are you starting your own? You have to work under somebody for some time. You can't just start your own like that." But I was, I had the guts to start my own. I had that guts to take up the challenge, and that somehow worked for me, honestly. Because I was told by people, in this profession you will not see success unless your hair turns grey, unless you turn old and all that. But I have honestly, according to me, all these barriers, preconceived notions just collapse if you're very dedicated and passionate about your work. All these things become absolutely immaterial if you're passionate and true to your craft. Then because I'm a living proof to the fact that you can be successful at a young age also in legal profession, to be very honest. ऑल्सो सना, हमारे इंडिया में जब कोई फीमेल बहुत ऐसे बोलते ना सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है ना, तो उनके ऊपर उंगलियाँ भी बहुत उठती है. आई एम श्योर आप भी टारगेट हुए होंगे. बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब आपके खुद के प्रोफेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर उंगलियां उठाते होंगे कि हाँ भाई इतनी जल्दी जल्दी कैसे ये सक्सेसफुल होते जा रही है. टू बी वेरी आई मीन ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट आई बिलोंग टू, बिकॉज जिस प्रोफेशन में हूँ एक तो लोग उंगली उठाने से पहले भी डरते हैं.
क्योंकि ये क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, फर्स्ट एक तो लॉयर, ऊपर से क्रिमिनल लॉयर, तो अपने आप ही एक रहता है कि पीपल आर इन द लिमिट्स कि हाँ ठीक है, मेरे से कोई बोलने से पहले भी 10 टाइम्स पीपल आर पीपल थिंक 10 टाइम्स बिफोर इवन मेसिंग अराउंड विथ मी, और सो दैट आई थिंक इट्स एन एडवांटेज, आर एन एडवांटेज विच आई ऑनेस्टली ट्रूली इन्जॉय। एंड अदर देन दैट, अगर आप जैसे कुछ बोलने की या कुछ उंगली उठाने की बात हो, तो मेरा जो भी रहा है हर चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकेडमिकली हर चीज़ में, बहुत पढ़ाई में मैं हमेशा से बहुत अच्छी रही हूँ। एकेडमिक्स में मैं आई वाज ऑलवेज लाइक वन ऑफ द टॉपर्स। मैं हमेशा से, मैं हर चीज़ में, मैंने अपने पढ़ाई में भी मेहनत की, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी हमेशा से बहुत अच्छी थी। तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीबडी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन द प्रोफेशन ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वाज लाइक अ बाउंड टू हैपन थिंग इन माई फैमिली कि हाँ शी इज़ डूइंग सो वेल। बट हाँ, जब क्रिमिनल लॉ में गई तो जैसे आपने कहा कि बहुत जब क्रिमिनल केसेस लेने लगी, तो आई वाज टोल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल कि अरे यू लुक सो प्रिटी, यू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री, यू डू ग्लैमर, और you do, why don't you do join corporate, take the easy way, easy route, why do you want to deal with criminals, आपको क्यों इतना hard task क्यों लेना है, why do you want to deal with this? But honestly for me, I've been so bold all my life that I never felt any, especially gender bias, I never felt that, the gender barriers and all these collapse once you honestly are very passionate and once you're very true to your craft, because I never felt that difference, because I have been very determined about my work and I just do it undeterred. तो इसीलिए अगर कोई उंगली, तो जैसे आपने उठाने की बात की, तो मेरे केस में तो ऑनेस्टली ऐसा कभी किसी ने जुर्रत भी कोई करता नहीं है और ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज हर चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है और वो लोगों को दिखा भी है। मैंने इंटर्नशिप्स लोगों ने करते हुए देखा है मुझे, व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट। तो व्हेन आई स्टार्टेड आउट ऑल्सो, इट वाज नॉट लाइक एन ईजी वे थिंग। सी आई ऑनेस्टली ऐसा नहीं था कि मैं जैसी लॉयर बनी मुझे केसेस आना शुरू हो गए। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई गेट ऑल द गुड केसेस एंड बिग केसेस एंड आई क्रैक दोज केसेस, ओइंग टू माई द सक्सेस रेशियो इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड माई टैलेंट। एंड वो वर्ड ऑफ माउथ से होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बड़ा केस क्यों आया, बिकॉज कुछ केसेस में जब सक्सेस रेट लोग देखते हैं तो वो बात फैलती है और फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलता है, अच्छा दिस इज द गर्ल who puts in her best effort. Once she takes up a case, she's very committed towards the client, towards the work, and then it's not. I don't even take up everybody's case so easily. When people come up with their cases, honestly, I'm very choosy about that also. So all these things mattered, and then people have seen me growing, like at a pace कि हाँ, मतलब people have believed कि हाँ ये मेहनत से हो रहा है, and also with smart work also. Like how I'll reiterate, it's not just hard work, but I work smart, and I do not deny that I work smart also. I know how to delegate also. I know where to lead, and I know how to where to take the charge. I know कहाँ क्या बोलना है. I know कि कब कौन से point को कब रखना है कोर्ट में सामने, और मुझे छोटी छोटी बारीकी को निकालने आता है. वो सब एक skill है, जो skill है which I have learned also over the years and which I'm gifted also in a way, certain way, honestly. फैमिली का कितना सपोर्ट था सना आपको? टचवुड माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट है. माई फादर इज़ ऑल्सो लॉयर, सक्सेसफुल. ही इज़ ऑल्सो बीन अ सक्सेसफुल लॉयर. बट आई विल अगेन ऐड ईयर कि ही नेवर, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जैसे ही लॉयर बनी तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा केसेस वाइज सपोर्ट नहीं मुझे मिला फादर से. ऐसा नहीं था कि मैं जैसे ही बनी तो फादर के क्लाइंट से कुछ केसेस आए, ऐसा कुछ नहीं. आई जस्ट स्टार्टेड माई ओन, and that was even more challenging, because my father was also a little surprised because I started my own separate office in Fort, and he was also a bit surprised कि अरे मतलब why you not joining my chamber, why you not working with me. But I was very adamant that I wanted to start my own, and I wanted to carve my own niche and create my own separate identity, not like somebody's daughter like that or somebody's sister, not like that. I of course wanted to have my own identity, and that I think became the root cause and driving force behind my passion all the more, that I have to start my own. और वो जो एक पैशन था ना, उसके साथ ही मैं बस आगे बढ़ती चली गई, और वो दैट समहाउ फ्रुक्टिफाइड इन अ वे कि दैट आई एक्वायर्ड रिकग्निशन एट अ वेरी यंग एज इन माई प्रोफेशन, वेयर आई विल एडमिट ऑनेस्टली बहुत टाइम लगता है लोगों को. इसीलिए बहुत सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है इस प्रोफेशन में, स्पेशली लीगल प्रोफेशन में टाइम लगता है लोगों को रिकग्निशन के लिए, ये वो. बट आई एम ऑल्सो अगेन थैंकफुल टू द जुडिशरी ऑल्सो, बिकॉज आई एम अप्रिशिएटेड as a fresh law also. While I was arguing, I was always motivated and appreciated by the judiciary also कि okay, you're doing it on your own, very good, like that, और फिर वो appreciation से आप और encouraged feel करते हो और motivated feel करते हो. उस चीज़ से फिर धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया. वो word of mouth से मेरा एक्चुअली काम बढ़ा, without any backbone, without any support. सो मेरे केस में कोई नेपोटिज्म नहीं था. मेरे केस में ट्रू जेन्युइन हाँ, खुद का एफर्ट और खुद के मेरिट और खुद के स्किल पे मिला. तो पेरेंट्स का सपोर्ट, हाँ, पर कभी जैसे मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं या ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स माई मॉम गेट्स वरीड एंड माई मॉम टेल्स मी समटाइम्स दैट माई फादर इज तो लाइक ऑफकोर्स ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो ही नोज दैट आई एम क्वाइट थिक स्किन्ड एंड सीइंग एवरीथिंग in my family. I'm quite thick skinned because my father's also handled big cases. My mother sometimes got apprehensive. She used to tell me कि अरे
तुम सोचो, थोड़ा सोचो तुमको सच में कंटिन्यू करना है इस प्रोफेशन में. शी वॉज समटाइम्स अ बिट एप्रीहेंसिव, बट देन अगेन शी सॉ मी अगेन going moving forth undeterred despite of the threats, and despite of the threats also I continue to defend my clients and take them out. While I was handling the case and I was getting the pressure, I never bowed down to the pressure. So when she saw me really coming out victorious in the face of these threats and pressure, so she again became very confident that ये सना कर लेगी, अब कुछ नहीं, अब तो कर लेगी, मेरी बेटी शेरनी है, like that. तो सना मुझे ये भी जानना है आपसे, पहला वो थ्रेट क्या था आपके लिए? सबसे पहला, ऐसे तो मुझे काफ़ी थ्रेट्स मिले honestly. फर्स्ट आपका? सबसे first is I have been quite vocal about that also. It was that Haryana encounter matter. While I was handling that case, I was defending an alleged gangster in that case, and I was also defending a model in that case. So while I was defending her, I started getting death threats. And like very बहुत ही explicit type के threats थे, कि case छोड़ दो वरना तुमको जान से मार देंगे, ये वो. But and then for a moment I was, of course, I felt कि like why suddenly like this. But then I realized because ये case, of course, ये case बहुत ही चर्चित रहा है हमेशा से. And when I took up the case, तो कहीं ना कहीं मेरा एक track record रहा है. Once I take up any case, I ensure that I get relief for my client and I get that person out. So कहीं ना कहीं वो एक रहा होगा कि I'll get her out, and then I just then my mom, as I said, she became a little apprehensive. But I still just continue to remain undeterred. शायद मेरे जगह कोई और होता तो शायद केस छोड़ देता या ये होता. But I did not bow down to that pressure. I decided कि I have taken it up. Now I owe a responsibility to her. This is my legal profession and this is my responsibility. As a responsible, lawyer, I have taken it up and I have to get her justice. I just fought relentlessly. I got her out. And the moment she was out, she was a very young girl when she went inside. She spent, quite a few years inside. Before she approached me, she had approached other lawyers also. उनके cases में बहुत उतार चढ़ाव आए थे. Then finally वो मेरे पास आई थी and I took it up and I got her out. Like within a few months I got her out. The moment she was out, वो मुझे देख के the smiling face, and she's telling me कि thank you Sana, you've given me a new life and I owe this second life to you. Touchwood, like mashallah, and I was so happy because this is the feeling that exhilarating feeling which I live for honestly every day. Seeing my clients coming out, seeing them happier, that only makes me, that gives me a kick, एक adrenaline रहता है कि अच्छा मतलब मैंने किसी की life में change लाया. Like how a doctor saves somebody's life, even a lawyer can bring that impact and can probably end up saving somebody's life. That's how powerful, that's the power of my profession. So every day I'm reminded that with each passing day from my clients. So that was also a very exhilarating feeling. Then just within a few months of her release, she was killed. उनका murder हो गया. And that's when, I was super disturbed, to be very honest. Like I can't walk away from the fact that, I was deeply disturbed. For a while, it took me some time to absorb it. And for a while, I was just like chilling, मतलब मैं थोड़ा कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए. For probably a week, for a week I rested. But then I realized that, things are very temporary. And then I realized a lot of things with that experience. And then I realized that, I secured justice for her despite of threats, and I was undeterred. And, no matter whatever has happened will not deter me from, continuing to fight for my clients and continuing to fight for justice. So that only made me even more stronger to fight for my clients and, to fight for justice. So that never became a deterrence for me, thankfully and fortunately. और that only made me stronger. तो उससे मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिससे मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आए एंड मैं बहुत और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हुई हूँ. बट ये बहुत डिस्टर्बिंग तो रहा है मेरे लिए, क्योंकि दैट गर्ल डिजर्व्ड टू फ्लरिश इन लाइफ आफ्टर coming out, after struggling for so many years inside. But for something that happened, then somehow I believe कि अभी वो जहाँ भी होगी वो खुश होगी. May her soul rest in peace. Yeah. सो ऑल्सो सना, जब आप इस इंडस्ट्री में आ गई थी तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस तो आपको थे ही, बट वो कैसे यूज टू हो जाता है हर कोई, मतलब किसी भी प्रोफेशन में जाए, जब एक बार वो कोई अगर आपकी केसेस की बात हुई या मेरी अगर बात करें तो इंटरव्यूज़ की बात हुई तो यूज टू होता ही है. बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिससे कह सकते हैं ना इमोशनली भी अटैचमेंट हो जाती है. आपके लाइफ में ऐसा क्या रहा है, वो कौन सा केस रहा है जिससे आप खुद हर्ट हुए होगे अगर आपके क्लाइंट को कुछ भी हुआ होगा? सो एंड सो hurt,
ऑनेस्टली अगर मेरे क्लाइंट्स हर्ट होते हैं तो आई इंश्योर कि फिर मैं उनकी रेमेडीज़ और रिलीफ उनको वापस दूँ, और फिर वो हर्ट के बाद आप हैप्पीनेस भी देखते हो. यू नो आई हैव सीन ऑनेस्टली जो आपने मेरे क्लाइंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देखा है. फॉर एग्जाम्पल आई मीन आई विल बी अगेन आई कैन टेक नेम्स ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन सी लाइक लेट्स टेक इंद्रानी मुखर्जीज केस. आपने देखा है कि दिस अ ह्यूज मीडिया नैरेटिव, एक पब्लिक स्क्रूटिनी थी, एक बहुत कुछ कहा जा रहा था वाइल शी वाज इनसाइड. देयर वाज ऑलरेडी एन ओपिनियन, देयर वाज ऑलरेडी अ पब्लिक ओपिनियन said because of the media narrative that she is guilty, she has murdered her child even before the court has declared her guilty. But when I took it up, my strategy and my thought process was very different. I definitely, after going through the case, I took up the case and I believed in her innocence, and that is the reason I took it up. Then I got her out. When I got her out also, she was, that time also, of course, after she had spent quite a lot, she had spent 6 years and in prison. And she approached me just 3 months prior to her release, honestly. तो फिर फिर मैंने 3 महीने में बाहर निकाला. फिर जब वो बाहर आई तो वो भी थोड़ी थी शुरुआत में, वो भी काफ़ी शी वाज टेकन अ बैक, उनके लिए भी बहुत नया था हर चीज़. बट if you've seen her life transforming, then she wrote a book, then आपने देखा कि फिर that I was very instrumental in of course materializing the whole Netflix web series. वो जो वेब सीरीज़ आई उसमें भी मैंने बहुत अहम भूमिका, मतलब मैंने पूरा मटीरियलाइजिंग में, पूरा एग्जीक्यूशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एंड उसमें भी आई इंश्योर्ड दैट शी गिव्स हर साइड ऑफ द स्टोरी, एंड देन पीपल स्टार्टेड हियरिंग हर स्टोरी. एंड नाउ इट्स नॉट लाइक जस्ट द मीडिया स्टोरी, इट्स लाइक यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. एंड नाउ from that perception that she has definitely done it, to changing perception that okay, she might be innocent, maybe she's not guilty. तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने में अगर आप देखो तो वो एक बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है मेरे लिए. वो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ जब मैं उनको, और नाउ शी इज़ डांसिंग ऑन अ लिट फेस्ट, एंड अब फॉर अ लिट फेस्ट, एंड इस तरह की ग्रोथ भी मैं देख रही हूँ. सो आई फील सो इमेंसली ग्रेटफुल दैट समवेयर आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर ग्रोथ, एंड सीइंग हर हैप्पी एंड ग्रोइंग एवरी डे मेक्स मी हैप्पी honestly, because somehow then because of course she always acknowledges the fact and she says that I am responsible for her freedom. She always says that blatantly. But मैं जब ग्रो होते हुए देखती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बाहर आने के बाद उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ टाइम आप अंदर रहो, फिर वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप रहने के बाद आप बाहर अचानक से आओ, फिर वापस उठ के गिर के उठना, वो बहुत डिफिकल्ट है. और जब वो इंसान गिर के एक बार उठ जाता है तो दैट पर्सन बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर, और फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है. तो कहीं ना कहीं मैं वो देखती हूँ अपने हर क्लाइंट की जर्नी में, जब वो एक बार अंदर से बाहर आता है, फिर वो वापस उठता है, वो वापस स्ट्रांगली they face the world and they grow. So to see that journey itself is a very beautiful is a very beautiful concept altogether. कहीं ना कहीं ये है. बट सना, आप स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, बिकॉज आपसे जितने बार मिलो आप अलग अलग, आपकी जो बोलते हैं ना ऑफ कैमरा भी जो हमारी बातें होती है बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है वो. बट आप स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट आपकी भी तो होगी ना वीक पॉइंट. आप भी थोड़े इमोशनल होते होंगे, आपको भी चीज़ें बुरी लगती होंगी. सो क्या होता है वो ट्रिगर पॉइंट आपके लिए? सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अग्रेसिव हूँ. मैं कोर्ट में भी आई एम क्वाइट अग्रेसिव so far as my points are concerned, to put forth my points. मैं वो चीज़ में, जैसे किसी का सॉफ्ट अप्रोच होता है, किसी का थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो मेरा एक ऐसा अप्रोच है कि आई वांट टू पुट फॉर्थ माय पॉइंट, एंड आई हैव टू इंश्योर कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट पूरी तरह से खुल के आए. मैं ऐसी हूँ. और इमोशंस की जहाँ बात रहे ना, तो मैं बहुत वोकल, आई विल बी अगेन वोकल अबाउट द फैक्ट दैट आई एम नॉट वेरी इमोशनल. टू बी वेरी, आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑनेस्टली, एंड बिकॉज ऑफ द exposure, the things that I've been exposed to in my life. अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी लाइफ जर्नी और जहाँ से मैं आती हूँ, और फिर आप जैसे शायद यूजुअली आप जिनको इंटरव्यू करते हो, आप शायद फ्रॉम ग्लैमर इंडस्ट्री से यूजुअली, तो उनमें और मेरे में क्या फ़र्क है कि मैं एक्चुअली रियल लाइफ देखती हूँ एवरी डे, और मैं जो चीज़ें देखती हूँ वो फिल्म स्टोरीज से भी ज़्यादा ड्रामेटिक और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा दर्दनाक समटाइम्स शॉकिंग होती है, जो एक्चुअली मूवी स्टोरीज विल ऑल्सो फेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ हर रोज़ के बेसिस पे, थ्रू इन टर्म्स ऑफ माई केसेस, और जो भी चलता है इर्द गिर्द जो मैं केसेस देखती हूँ, उससे मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ ऑनेस्टली. और मैं समझ गई हूँ कि रियलिटी जो है, मैं बहुत ईजिली आई कैन डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम फिक्शन. तो इसलिए मैं again I can be very honest about it, that I'm not a very emotional person. I'm quite practical, but yes, I'm very sensitive to people, and I'm very empathetic also at the same time. कि हाँ, अगर somebody is hurt, or somebody is going through a phase, or somebody is hurt या ये वो, so you will never see me traumatizing anybody or anything. I'll always ensure कि I become a healer for the wound. I'll always be a healer for the wound. So I will do that. I'll do my best for those who are hurt around me for this.
बट प्रॉब्ली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाती हूँ फॉर माई यू नो फॉर द पीपल अराउंड मी बिकॉज आई एम सो ऑक्यूपाइड विथ माई प्रोफेशन that, but at the same time again I will not be the source of hurt for anybody also at the same time, because again that becomes a positive thing na, because I'm so occupied and busy I will never end up hurting anybody unnecessarily. वो भी एक चीज़ हो जाती है, पर मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. ऑल्सो सना, आपने जब आर्यन खान का, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो लॉयर थी जिसने आर्यन खान को बाहर निकाला था, वो भी आपको अप्रोच करते ही आपने तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट किया था. सी आर्यन खान केस में ऑनेस्टली आई टेल यू, मैंने जैसे ये केस में ना जैसे सबसे फर्स्ट बेल, जैसे बहुत 20 लोग ये केस में अंदर थे, तो इस केस में एक इंसान का भी बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया था, किसी एक का भी बाहर आना. तो जैसे ही ये केस आई वाज अवीन साहू जो ये केस में थे, ही अप्रोच्ड मी इन दिस केस, जो आर्यन खान के ही फ्रेंड थे, और वो टाइम पे आर्यन खान का बेल आज रिजेक्ट हो गया और फिर नेक्स्ट डे अवीन साहू हु हैड अप्रोच मी, आज मेरी बेल हियरिंग थी, ऐसा हो गया था. सो यू नो एवरीबडी वाज सेइंग कि अरे आर्यन का रिजेक्ट हो गया, यू डोंट आर्ग्यू, लेट हिम गेट बेल फ्रॉम द हाई कोर्ट. सो आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अगेन अफेक्टेड और बॉदर्ड बाय व्हाटएवर हैज हैपेंड इन अनदर केसेस. लाइक नहीं, वो तो बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट, वो तो उनका केस ऐसा है कि अगर उनका हुआ है तो इनका भी हो जाएगा, बिकॉज मोर और लेस सबका केस सेम था. बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई आर्ग्यूड माई केस एंड आई पुट फॉर्थ माई पॉइंट्स, एंड ऑफकोर्स बेरिड स्ट्रैटेजी के साथ मैंने डिफरेंट पॉइंट्स रखे कोर्ट के सामने, एंड आई गॉट द बेल. मुझे बेल मिल गया इमीडिएटली, एंड मेरा बेल वो एक फर्स्ट बेल बन गया इस केस में. और यहाँ पे 20 लोगों के एक में से एक का बाहर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑफकोर्स कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस चार्जेस लगे थे. तो फिर वहाँ पे अगर एक इंसान को भी जैसे ही मेरा क्लाइंट बाहर आया तो बहुत ईजी हो गया सबके लिए बाहर आना. देन ऑफकोर्स आर्यन्स टीम अगेन देन रीच्ड आउट टू मी, क्योंकि दे रिलाइड ऑन माई ऑर्डर ऑल्सो, माई बेल ऑर्डर. फिर उन्होंने मेरे बेल ऑर्डर पे रिलाई किया ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट, और उससे फिर उनको भी ऑफकोर्स हेल्प मिली उनके केस में भी. तो समहाउ आई बिकेम वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन क्रैकिंग द होल केस, बिकॉज वो एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर हो गया, क्योंकि मेरा बेल ऑर्डर सबसे फर्स्ट था. तो ऑफकोर्स एंड देन व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने भी ऑफकोर्स अपना असिस्टेंस दिया थ्रू माई ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट हेल्प्ड आउट. सो दैट बिकेम लाइक एन हिस्टोरिकल थिंग, बिकॉज दैट टाइम ऐसा हो गया था कि अरे कॉन्स्पिरेसी है, ये सारे जो बहुत यंग लोगों को अंदर डाल दिया गया था. फिर पता है एक का भी बाहर आना मुश्किल था, जैसे जैसे चार्जेस लगाए जा रहे थे, और उनको बोला जा रहा था इंटरनेशनल ड्रग माफियाज के साथ इनके कॉन्टैक्ट्स है. इतना was blown out of proportion in a way. Then the way I simplified everything during my argument, everything, all the key points which I put forward in my argument, that helped in fact for everybody in the case, because उससे सबको हेल्प मिली और सब लोग बाहर आए. तो उस वजह से माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल गई, क्योंकि कि ऐसा हुआ कि आज किसी का रिजेक्ट हुआ है और फिर अगले दिन मुझे कहा जा रहा है कि नहीं आप मत आर्ग्यू करो, कि उनको पहले ऑर्डर ले लेने दो. मैंने बोला नहीं, मैं पहले ऑर्डर लूँगी, अगर उनको हेल्प लगेगी तो वो मेरा ऑर्डर पे रिलाई करे. आई एम नॉट गोइंग टू नीड एनीबडी एल्सेस ऑर्डर. So that's how I am. I want to carve my own niche. I'm not going to follow somebody else's path. That's how I am. I have belief in myself. ऑल्सो सना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको बिग बॉस के लिए बहुत बार अप्रोच किया गया था, बट 3-4 साल अप्रोच करने के बाद आखिर क्या वजह थी कि आपने शो में जाने के लिए हाँ कह दिया था? एंड कब से ये चालू, कब से था आपको अप्रोच करना? अप्रोच तो काफ़ी सालों से था, बट ये साल एक्चुअली, और इस साल भी पहले मैंने मना कर दिया शो के लिए, ऑफ कोर्स इनिशियली फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर माय प्रोफेशन, एंड देन अगेन दिस शो काइंड ऑफ अ बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज अगेन फिर मेरा जैसे मेरा हेक्टिक स्केड्यूल है. जो दूसरे आते हैं वो शायद उनका अगर अगर उनको थोड़ा टाइम रहता होगा तो ये आते होंगे, पर मेरे पास तो बाहर सांस लेने का भी टाइम नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बाहर ऐसा है कि मतलब फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड, आई मीन मॉनिटरली ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर ईच एंड एवरी आवर इफ आई एम गेटिंग पेड इन अ सब्सटैंशियल मैनर, और मेरा हर चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा है, टचवुड माशाल्लाह. तो उसमें अचानक से फॉर मी टू डू अ शो लाइक बिग बॉस, लाइक पीपल आर सरप्राइज कि अरे व्हाई इज शी सच अ बिग लॉयर, व्हाई इज शी डूइंग बिग बॉस, लाइक दैट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन फॉर मेनी पीपल. एंड इवन आई आल्सो सेड नो इनिशियली, बट देन सडनली आई डोंट नो, इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ इट वाज अ वेरी इंट्यूटिव थिंग. कि जैसे क्या हुआ कि आज बहुत टाइम से मैं बोल रही थी नहीं मेकर्स को मैं बोल रही थी, फिर आज शाम में ओपनिंग थी, बस शो शुरू ही होने वाला है, एंड सुबह आई डोंट नो, इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ मैटर ऑफ इंट्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई जस्ट सेड ओवर द कॉल, आई सेड ओके आई विल डू इट लाइक दैट. And primarily, Diwali, I don't know, probably I was destined to do the show. This is what I feel now. And even Salman Khan is also asking me, opening वाले day पे, आप ये show में जा रही है, आपका प्रोफेशन, आपका बाहर काम कौन देखेगा? I said no, I have a firm. अभी तो मैं delegate करके आई हूँ and it will be taken care of. But I was, of course, वो stress तो रहता है कि बाहर इतना काम है, और वो काम थोड़ा होल्ड पे रख के आना, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि दूसरे जो अंदर रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको, आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि
कि दूसरों का काम का अगर कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो कभी कोई शो ऐसे यूजुअली ले लेता है, पर मेरे लिए तो ऐसा है कि माशाल्लाह बहुत ही पीक करियर, बहुत इट्स गोइंग वेरी ग्रेट, इट्स गोइंग वेरी वेल, और इतना काम होने के बावजूद फॉर मी टू कम इनसाइड इट वाज लाइक अ बिग डील ऑनेस्टली. देन आई समहाउ very challenging also, and then when I came inside also again others were all from TV industry and मतलब लोग अपने सब एक ही तरह के सब इंडस्ट्री वाले थे. So I was like again initially also if you see I was like the odd man out कि अचानक से from a legal industry, from a different world altogether. So again people were expecting अरे ये तो बेचारी एक हफ्ते में शायद चली जाएगी, ऐसा कुछ सोच रहे थे. And honestly I went inside only because Diwali vacation was around the corner. So I went there for fun. मैंने सोचा अभी कुछ टाइम है वेकेशन का, मैं भी बस एक्सपीरियंस के लिए गई थी. मुझे जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरा मोटिव है. हाँ, बिग बॉस जीतना मेरा कोई गोल या एम नहीं है, क्योंकि बिग बॉस जीत के कोई झंडा तो नहीं गाड़ लेता है. तो मेरे लिए था कि बस जाना है, थोड़ा देखना है एक्सपीरियंस के लिए कि क्या होता है क्या नहीं, एंड देन फिर थोड़ा सा मतलब चिल रिलैक्स करके एक्सपीरियंस के लेके वापस आना है. When I went inside, so of course it was initially जैसा मैंने सोचा था कि जैसा है वो एक्सपीरियंस वैसा था नहीं, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा मैं एक्सपेक्ट करके गई थी. और फिर अगेन इट वॉज अगेन एट द सेम टाइम अ केक वॉक फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड दैट आई कम फ्रॉम, मैं बाहर क्या क्या कैसे कैसे लेवल के मैं मैटर्स देखती हूँ. अंदर में आके देख रही हूँ अचानक से एक कंटेस्टेंट अंडे के लिए रो रहा है, लड़ रहा है, बोल रहा है अच्छा मुझे अंडे चाहिए, मुझे अंडे चाहिए. बोला अच्छा, अरे वाह, बाहर में मर्डर, ड्रग्स, गैंगस्टर्स, ये सब केसेस देखते हो, यहाँ पे अंडों के लिए लड़ाई हो रही है. यहाँ पे मतलब मेरे लिए भी एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था. फिर लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते थे ना, तो मैं सच में हंसती थी. आई यूज्ड टू बी एंटरटेन समटाइम्स. आई ऑल्सो वुड बिकम लाइक कि अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा है. मैं भी, आपने देखा होगा कितने साइलेंट हो जाती थी आप एकदम. मैं तो कॉर्नर में बैठ के मैं भी कभी कभी मजे लेती. आई वुड बी लाइक अ स्पेक्टेटर, आई वुड आल्सो एंजॉय, बट इफ समबडी वुड मेस अराउंड विद मी देन आई वुड गिव इट बैक. मैं किसी को छोड़ती नहीं थी, मैं वैसे ही, वो मेरा नेचर दिखा. अगर मैं अननेसेसरी ना किसी को पोक करती थी, पर somebody would poke me, which people would deliberately. There were instances when people, when contestants would poke me, would even target me, because I was, of course they thought कि अच्छा कि ये easy target है, because इसलिए right in the beginning only gang up भी होने की कोशिश हुई. बट अगर आपने देखा, आई वॉज नॉमिनेटेड एवरी वीक, एंड दो आई हैड नो फॉलोइंग दैट टाइम, आई वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, स्टिल आई वॉज गेटिंग सेव्ड बाय पब्लिक वोट्स ऑल्सो. और मेरा किससे झगड़ा नहीं हुआ, घर में हर किसी से झगड़ा हुआ. राइट इन द बिगिनिंग ओनली मेरा आते साथ ही मेरा काफ़ी लोगों से झगड़ा भी हुआ, बट फिर पैचअप भी होता था, फिर ये सब चीज़ें हो जाती थी. पर कैसे, मतलब ये सब चीज़ें हम बाहर लेके नहीं जाते, वो घर में ही ख़त्म हो जाती है, यही होता है. बट फिर भी मेरे लिए एक्सपीरियंस तो था, क्योंकि बिकॉज आई लर्न अ लॉट अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर इनसाइड द क्लोज हाउस. क्योंकि मेरे लिए कैसे मैं लोगों को बाहर निकालती हूँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, तो मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैंने भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया अंदर जाकर, है ना. मैं तो हर रोज़ लोगों को बाहर निकालता, लोग बोलते मैं जेल में रह के आया हूँ. जब लोग ऐसे कहते हैं, बिग बॉस अगेन ऑफकोर्स बिग बॉस को जेल तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं सिमिलर एनवायरनमेंट तो रह ही रहा है. इनफैक्ट ये बिग बॉस के हाउस में तो ऐसा है कि लोग, पीपल आर पुलिंग यू डाउन एवरी डे, गिविंग यू नेगेटिव टर्म्स, ऑलवेज बैक स्टैबिंग यू, बहुत चीज़ें हर रोज़ हर मोमेंट में कुछ ना कुछ चलता है. So to live in that environment and to sustain in that environment, and I sustained for quite a long time, unexpectedly, and I sustained and I saw a lot inside the house. मैं तो बहुत long time तक थी, मतलब for about 10 weeks मैं अंदर थी, और मैंने बहुत सारे बहुत सारे इक्वेशंस बहुत बनाए भी, और मैंने डायनामिक्स चेंज होते हुए भी देखे. बट ऑल इन ऑल इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस. मेरे लिए ये शो से ऐसा नहीं था कि मुझे शो से कभी कोई करियर बनाने जाता है या ये वो, मतलब माशाल्लाह टचवुड मेरा करियर ऑलरेडी सेट है. तो मैं तो ये शो में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गई थी. तो शो इज़ नॉट अ शो टू रिलाई ऑन फॉर माई करियर एंड बैंकिंग ऑन इट. इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी कोई डेस्परेट नहीं दिखी शो में. I always get this compliment from everybody that I was very dignified throughout the show. I never did anything for the camera unnecessarily, या दिखने के लिए मैं कुछ करूँ. जब कोई कुछ आता था मुझे कुछ बोलने, तब I would tell those people in fact, हाँ फुटेज के लिए कर रहे हो, आओ कैमरे के सामने आ जाओ, फुटेज के लिए लड़ना है, लड़ो मेरे साथ फुटेज के लिए. ये भी मैं करती थी, ये भी होता था. फिर एंड में तो आपने देखा होगा लास्ट वीक में तो मैंने अच्छा जब लाइक आई वाज रियली आई हैड लॉस्ट ऑन सर्टेन पीपल, आई हैड लॉस्ट माई माइंड, लाइक एज इन आई वाज रियली पिस्ड ऑफ ऑन सर्टेन पीपल, आई वाज वेरी एंग्री. तो मैंने तो लास्ट वीक में तो मैंने राशन ही उड़ा दिया घर का. मैंने बोला राशन उड़ाओ, मुझे ड्यूटी नहीं करनी है बस. मतलब मैं ऐसी ही हूँ कि हाँ अगर मेरे पे आई तो ठीक है, घर का राशन उड़ाओ. बट फिर एंड देन आई एक्सप्लेन, आई जस्टिफाई टू एवरीबडी कि यार तुम लोग राशन इतना वेस्ट करते हो, इतना राशन तो फेंक देते हो. वैसे भी लिमिटेड राशन सबको ही मिला, तो मेरे वजह से कुछ बैड इम्पैक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ. बट समहाउ दैट वाज लाइक अ मैनेजेंस मोमेंट. तो वो भी मैंने अपना दिखाया, मैंने हर रूप दिखाया, हैप्पी
happy mood, dancing mood. People were so surprised to see my dancing and all. Salman was telling me, "Arey वाह, मेरी थरथराती माधुरी दीक्षित," he said, because I dance in front of Madhuri. So that also, you know, वो भी बहुत सबको एक अलग-अलग हर रोज़ मतलब I evolved. और ऐसा नहीं कि मैंने आते साथ सब कुछ दिखा दिया. I evolved in my journey. और फिर मैंने धीरे-धीरे I opened up and I showed my different aspects. It was not like कि जाते साथ ही first day opening पे नाच लो, गा लो, first day झगड़ा कर लो. सबने मेरा ट्रेड धीरे-धीरे देखा, कभी झगड़ा, कभी डांसिंग, कभी ये. But you know one thing I always get appreciated for कि मैं कभी रोई नहीं शो में. पीपल टेल मी कभी रोई नहीं, क्योंकि हर कोई जाता है तो एक हफ्ते में ही रोना आंसू शुरू हो जाते हैं. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मैं बहुत टफ हो चुकी हूँ बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन दैट आई एम इन. और जो चीज़ें मैं बाहर देखती हूँ तो अंदर जो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी कुछ अनफेयर या अनजस्ट नहीं होता था. मेरे साथ भी कभी गैंग अप लोग हो जाते थे, मेरे अगेंस्ट तो बहुत होते थे, ग्रुपिज्म चलता था. बट आई यूज टू टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली क्योंकि मैं बाहर की दुनिया में मैं क्या क्या नहीं देखती हूँ. तो अंदर तो मैं हंसती थी, बचकानी चीज़ें कर रहे लोग, करो करो. मैं हंसती थी, मैं रोती नहीं थी. अरे अच्छा ठीक है, करो करो ऐसे. इनफैक्ट यू नो देन पीपल वुड क्राई for me also while I was leaving also, you know, certain contestants cried for me. That time also I was happy. I was like, अरे it's just a game, it's not your life. अभी कुछ टाइम के लिए है, फिर बाद में बाहर आके सबको अपनी ज़िंदगी में ही वापस जाना है. It's not like the end of the life or end of the world. तो इसलिए मैंने शो को कभी शो की अहमियत मैंने उतनी ही रखी जितनी लायक थी. ऑनेस्टली शो को ऐसा मतलब इतना शो में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज माई इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टली शो में बहुत लंबा आगे जाकर अपनी इमेज को रिस्क या डैमेज का खतरा ये सबसे बेटर है कि मतलब यू बी डिग्निफाइड, बी ट्रू टू योर सेल्फ. अननेसेसरी ड्रामा ये सब मत करो. जो भी है जैसे बस रिमेन चिल्ड आउट ना यार. इससे तो ऐसा तो है नहीं कितना ही लड़ लो, आज कितना ही झगड़ लो. आप खुद बोलो जितने किसी ने कैमरे में दिखने के लिए कितना ही झगड़ा किया, कितना ही क्या कुछ किया, उससे क्या ही मिलता है किसी को लाइफ में बाहर आके. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर डिग्निटी से रह के आप बाहर जाओगे तो दैट इज़ योर ट्रू विक्ट्री. दिस इज़ व्हाट आई फील. ऑल्सो सलमान जी के बारे में आपने अभी बताया, सो जो उन्होंने एक्सपीरियंस आपको शेयर किया था, अगर उसमें से कुछ अगर आप बताना चाहें जिससे आपको खुद मतलब थोड़ा शॉकिंग लगा कि यार कि जो हमारी जुडिशरी है वो हर किसी के लिए सेम ही है. हाँ, तो जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी अंदर जाके ये चीज़ें, क्या वो चीज़ें थी जो उन्होंने आपको शेयर किया? हाँ, तो एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अंदर गए तो उन्हें टाइम लगा बाहर निकलने में. ऐसा नहीं था कि वो ओवरनाइट बाहर आ गए, बेल उन्हें ओवरनाइट नहीं मिली. उन्हें टाइम लगा, उनकी हियरिंग्स हुई और फिर वो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे यू नो वो फिर वो जब अंदर मिले फिर उनके भी इंटरेक्शन हुए आसपास बाकी लोगों से. फिर यू नो और उन्होंने वो बहुत पेशेंट थे उस टाइम पे, उस दौरान. और उसके बाद भी वो पेशेंस रखे और ऐसा नहीं है फिर उनको ये हुआ और अगले दिन हुआ कह रहे आपकी बेल हो गई, ऐसा नहीं. उन्होंने काफ़ी टाइम अंदर निकाला और उसके बाद भी वो बहुत स्ट्रांगली निकाला उन्होंने अपना टाइम. और फिर वो बहुत अच्छे से डिग्निटी के साथ वो बाहर आए यू नो. तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया कि यू नो इनसाइड अपना जेल एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे पूरा प्रिजन एक्सपीरियंस शेयर किया. और उन्होंने बताया कि किस तरह से यू नो ही जस्ट यू नो इन द फेस ऑफ प्रेशर एंड दोस चैलेंजेस वो डटे रहे. वो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने हर चीज़ फेस की और उसके बाद भी वो बाहर आके उन्होंने सब आप देखो नाउ यू नो ही इवन गॉट एक्विटेड ऑल्सो फॉर ऑल द चार्जेस. सारे चार्जेस से भी उनको एक्विटल मिला. तो वो सब एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे केसेस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में. बहुत अच्छा, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था हमारा. So yeah, so I learned a lot about this also, about the fact that you know कि हाँ कि he had to. I mean, it's not like that if you're a rich and a powerful person, you know, it comes easy to you. To be very honest, in my experience in this profession, especially, I have seen that sometimes the rich and the powerful has to bear the brunt of being the rich and powerful. I'll be very honest with you. बहुत से तमाम हर रोज़ हिट एंड रन केसेस होते हैं जो बहुत इजीली आदमी छूट जाता है. बहुत इजीली हिट एंड रन केस को इतना ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया जाता और इतना ग्रेविटी भी नहीं दी जाती है. बट फॉर एग्जांपल अगर आप पॉश का ही ले लो, पॉश हिट एंड रन केस, उसमें मैं खुद आई हैव ऑल्सो डिफेंडेड माई क्लाइंट इन द पॉश हिट एंड रन केस ऑल्सो. आई हैव हैंडल दैट केस. तो वो क्योंकि वो पॉश कार थी वो इसीलिए इतना बड़ा यूनिट पर अगेन उस केस को इतना मीडिया अटेंशन मिला, इतना ट्रैक्शन मिला. तो उसके बाद उल्टा इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू कम आउट इन दैट केस अगेन. फॉर एग्जाम्पल अगेन फॉर माई रिसेंट होर्डिंग केस, आप देखो घाटकोपर होर्डिंग केस, उसमें भी अगर आप देखो तो ऐसे तो मतलब सच में कोलैप्स. अगर आप देखो 304 पार्ट 2 जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सेक्शन लगा था. ऐसे केसेस में यूजुअली मतलब अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा ना हाइप होता है, ना ही कोई इतना ना ही इस केस में इतना कुछ दम था.
क्योंकि ये केस मैंने हैंडल किया, आई कैन से, बट व्हेन आई हैंडल दिस केस एंड आई वेंट थ्रू द चार्जशीट, देन आई रियलाइज कि इस जिस तरह से मीडिया अटेंशन, इतना ट्रैक्शन मिला और इस वजह से उस केस को इतना महाराष्ट्र का इतना बड़ा केस बना दिया गया, एवरी डे न्यूज़, इस वजह से कहीं ना कहीं वो क्लाइंट के लिए अगेंस्ट गया, उस चीज़ को उनके लिए बाहर आना और मुश्किल हो रहा था। फिर जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो तब मैंने उनको बाहर निकाला। द मोमेंट ही अप्रोच्ड मी, देन आई इमीडिएटली आई इमीडिएटली मूव फॉर हिज बेल एंड आई गॉट हिम आउट, जबकि मेरे पिक्चर में आने से पहले वो काफ़ी टाइम से अंदर थे। बट देन आई पुट फॉर्थ एवरी पॉइंट बिफोर द कोर्ट और मैंने उन्हें बाहर निकाला। पर तो मैं देखती हूँ कि समटाइम्स रिच एंड पावरफुल एक्चुअली हैव टू बेयर द ब्रांड, उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई विल से दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ एन एब्सोल्यूट एप्लीकेशन। ये सच में अप्लाई होता है हमारे लॉ के हिसाब से। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान रिच है तो वो ईजिली छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी तो वो उनके अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि मीडिया अटेंशन मिल जाता है उन्हें, मीडिया नैरेटिव्स बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाती है और वहाँ पे उनके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ कभी मुश्किल हो जाता है, नॉट ईजी। इनफैक्ट इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, टू बी वेरी फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्सो सना, अभी बिग बॉस का नया सीज़न चल रहा है। आई एम श्योर आपसे पता नहीं कितनी मीडिया से ये क्वेश्चंस आए होंगे, आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, बट मैं भी यही चीज़ जानना चाहूँगी कि आप फॉलो कर रहे हो। आई नो, जितना मैं आपको जानती हूँ आप तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे होगे। इनफैक्ट आपको कंटेस्टेंट्स के नाम भी नहीं पता होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, absolutely right. But you know what? Honestly, I didn't watch my own season. Now what else do I need to say? In fact, I read out articles of contestants coming out, seeing their own season, and then again, becoming sad after seeing the season. ये सब articles मैं पढ़ती थी. But I, mashallah, touch wood, I'm fortunate enough to never have the time to see my own season. Forget about somebody else's. नहीं देखा। मैंने अपना एक भी एपिसोड आज तक नहीं देखा, एक भी एपिसोड नहीं। हाँ, कुछ स्निपेट्स और जो क्लिप्स थे जो कहीं ना कहीं कोई इधर उधर पोस्ट होते हैं, वो सब मैंने थोड़ा बहुत अपना खुद का देखा। एंड आई फील लाइक ओह माय गॉड। ओके, झगड़ा देखा आपने? हाँ, मैंने अंकिता के साथ स्पेशली। दैट वाज लाइक द माय फर्स्ट बिग फाइट इन द हाउस वाज विद अंकिता, ऑनेस्टली। वो तो ऑफ कोर्स वो भी बहुत वायरल हुआ, वो क्लिप भी मैंने देखा, वेयर आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हर। ये वो अलग बात है कि बाद में हमारा पैचअप हो गया था, बट या माय फर्स्ट बिग फाइट वाज विद हर इनसाइड द हाउस। तो वो तो मैंने देखा ही। वो सबसे शुरुआत में मैं बोल रही हूँ कि अच्छा तुम ये करती हो, तुम वो, वैसे तो मैं लाइक कि अच्छा वो टाइम पे तब कुछ समझता नहीं ना, तब हम घर में रहते हैं, तब हम फिर मतलब फिट ऑफ रेज में तब हम बोलते हैं। पर बाहर जाके ये सब चीज़ें वी डोंट होल्ड ग्रजेस, वी डोंट होल्ड ग्रज अगेंस्ट ईच अदर। बाहर वैसा नहीं रहता। बाहर फिर स्पेशली इन माई केस तो बिकॉज मतलब माशाल्लाह टचवुड, आई बीन फ्लडेड विद वर्क द मोमेंट आई कम आउट, एंड आई हैव ऑलवेज बीन फ्लडेड विद वर्क ओइंग टू माई success ratio. So I in fact feel that the more busy you are, the more happier you are, and that is I think that is the biggest I think the best part of success is that it keeps you busy. and it keeps you constructive and it keeps you motivated. क्योंकि खाली दिमाग रहेगा तो इंसान कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलेगा, उल्टी चीज़ें करेगा। पर अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हो, अपने काम में अच्छा कर रहे हो, आप ऑक्यूपाइड हो, आप कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे और अच्छा ही करोगे और आपके साथ अच्छा ही होगा, कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से बच जाओगे और दूर रहोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी आपने देखा, I always refrain from speaking ill about even other contestants also, because that's not what my agenda is. My agenda is to actually grow in my profession and to create a legacy for myself and my work rather than attacking somebody या ऐसा कुछ। अभी कोई है आपके कांटेक्ट में जिनके साथ आप उस सीजन में रही होंगी? हाँ, कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। वो लोग? कुछ है भी कुछ नहीं भी है। वही तो, जो नहीं है वो तो स्पेशली जो नहीं है मैं उनमें से एक का नाम मैं बोल सकती हूँ, दैट हैदराबादी गाय, इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ। हाँ, उनके साथ तो तभी मैंने शो में ही बोल दिया था, आई वुडंट वांट टू कीप इन टच विद दिस गाय इवन आउटसाइड द हाउस। सो वो तो मतलब कुछ कैसे एक स्ट्रॉन्ग एक वो इंट्यूशन आपको अंदर ही आ जाता है इनसाइड द हाउस ओनली, दैट कि इस पर्सन के साथ तो नेवर आउटसाइड आई विल नेवर कीप इन टच। वो तो एक हो जाता है और वो सच में मेंटेन रहता है। बट बाकी के साथ तो आई एम कॉर्डियल विद एवरीबडी, बट ओइंग टू माई बिजी एंड ऑक्यूपाइड शेड्यूल मैं बॉम्बे में ही बहुत कम होती हूँ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट मैं दिल्ली में मेरा अप डाउन बहुत रहता है। ज़्यादातर मैं सुप्रीम कोर्ट में होती हूँ, दिल्ली में होती हूँ, तो आई मिस अ लॉट ऑफ इवेंट्स ऑल्सो, फॉर समटाइम्स किसी का कुछ पार्टी रहता है, कुछ रहता है, आई मिस अ लॉट ऑफ इवेंट्स बिकॉज आई एम ऑलवेज वर्किंग। सो टच वुड अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई एम ऑलवेज वर्किंग, आई एम ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। तो मैं सबके साथ कॉर्डियल हूँ, काफ़ी लोगों के साथ जुड़ी भी हूँ। जब मैं बाहर भी जाती हूँ, लंदन भी जाती हूँ, तो जो कंटेस्टेंट लंदन में था वो उससे भी मैं मिली, उससे भी वी हंग आउट। फिर यहाँ पे भी रिसेंटली मैं आई हंग आउट विद लॉट ऑफ कंटेस्टेंट। मतलब ऐसे होता रहता है। ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसके साथ है? बहुत, मैं किसी एक पर्टिकुलर का नहीं ले सकती हूँ, पर 5-6 लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छा ही बॉन्ड है। मतलब वो 5 लोग भी कौन है, अगर आप नाम बताना चाहो? नहीं, ऑनेस्टली ऐसे मतलब
अभी सबसे देखो मैं बोलूँगी मुझे सबसे जेन्युइन जो शो में लगा था वो नावेद था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था वो बेचारा अनफिल्टर्ड है, बहुत सच में बहुत इनोसेंट मुझे लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वैसा वो एक बॉन्ड मेरा शो के बाद भी उसके साथ रहा। जब इनफैक्ट आई वेंट टू लंडन ट्वाइस, आई वाज फेलिसिटेटेड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वहाँ पे भी ही वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, वी हंग आउट, वी चिल्ड एंड ऑल। उसके फ्रेंड्स भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, ये हुआ। तो वो एक बहुत इनोसेंट सा मेरा मुझे बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट लगता है वो, सच में बहुत अच्छा इंसान है। तो वो तो एक है कि मैं उसको हमेशा एक अलग या ऑलवेज होल्डन स्पेशल। बाकी तो फिर सबके साथ मैं काफ़ी कॉर्डियल हूँ, सबसे फ़ोन पे भी बात होती है, कभी मैं दिल्ली जाती हूँ तो किसी से मिलना भी हो जाता है, ये रहता है, ऐसा तो रहता ही है। विक्की अंकिता लोगों से है कोई कनेक्शन? हाँ, विक्की से तो बिल्कुल। इनफैक्ट विक्की हैज़ इन्वाइटेड मी ऑल्सो टू, मतलब उनकी पार्टीज़ में भी उन्होंने इन्वाइट किया था। तो फिर दैट टाइम ऑल्सो अगेन मैं दिल्ली में थी, तो मैंने विकी को बोला भी था दैट आई एम इन दिल्ली, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। बट अगेन वी आर वेरी कॉर्डियल। और ऐसा है कि देखो जैसा मेरा प्रोफेशन, आप मेरे केसेस के बारे में सुन रहे हो, आप समझ गए हो कि किस तरह से मैं कैसे कैसे केसेस हैंडल करती हूँ, और जिस तरह से उस तरह से आप मेरा स्केड्यूल भी इमेजिन कर सकते हो। सो फॉर मी टू बी एबल टू टेक आउट टाइम फॉर माई फैमिली ओनली इज़ अ वेरी बिग थिंग ऑनेस्टली। इस चीज़ में मैं फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। कभी कुछ हुआ, you know, sometimes people call me for advice because of my professional aura and all, तो people then seek my advice, help। तो मैं हमेशा रहती हूँ लोगों के लिए, मैं हमेशा खड़ी भी रहती हूँ, मैं हमेशा राइट टाइमली एडवाइस भी, प्रॉम्प्ट एडवाइस भी देती हूँ। ओके, सो सना, अगर आपको कभी मौका मिलता है इन केस बॉलीवुड में किसी के साथ स्क्रीन शेयर करने का, और कोई रियलिटी शो जैसे और भी है, खतरों है, नच बलिए है, मतलब बहुत सारे ऐसे। See, honestly, I was already offered a dance reality show, which I have refused. Right? You should understand. Like right after coming out of the show, मैं बिग बॉस से आने के बाद मुझे एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑफर हुआ फॉर अ डांस रियलिटी शो which was going on, and I immediately refused because एक रियलिटी शो से आने के बाद you can't just directly get into another reality show with that mind. एक आपका ऑलरेडी और फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ना टू डू अ रियलिटी शो, और वो भी ऐसा रियलिटी शो जहाँ पे दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट शो आई कैन से। इनफैक्ट इवन बिग ब्रदर, इफ यू टेक ऑल्दो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाया गया है, पर बिग ब्रदर में भी आई थिंक 4 या 6 वीक्स होता है मैक्सिमम, है ना, इतना तो नहीं होता होगा। मैं तो मेरी 10 वीक्स की जर्नी थी, ये शो तो शायद 15-16 हफ्ते या 20 15 हफ्ते चला था। हाँ, 15 हफ्ते चलता है, 14 हफ्ते चलता है। मैं खुद 10 हफ्ते अंदर रह चुकी हूँ। तो ऑफकोर्स बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, ऑफकोर्स फॉर एनीबडी टू बी इन दैट एटमॉस्फेयर ना, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, चैलेंजिंग ऑल्सो फॉर, चाहे आप कितने ही मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। मेरे जैसी लड़की जो, मैं तो खुद बोलती हूँ मैं बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं एक अलग एनवायरनमेंट से, उसके बाद भी मैं थोड़ा सा मैं भी अफेक्टेड थी फॉर अ वाइल की इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट देख के। बट देन आई इमीडिएटली स्नैप्ड आउट ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज द नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई स्टार्टेड गोइंग टू वर्क, आई स्टार्ट गोइंग टू कोर्ट, एंड आई स्टार्टेड, मतलब मैं बिल्कुल भी मैंने ब्रेक एक दिन के लिए भी नहीं लिया, एंड माशाल्लाह इट्स अ गुड थिंग ओनली। आई नेवर गॉट अ चांस ऑल्सो टू टेक अ ब्रेक और एनीथिंग। बट जब सना आप बाहर आई थी, आपने बहुत सारे हेडलाइंस पढ़े होंगे आपके लिए, बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग हेडलाइन क्या थी आपके लिए? सबसे ज़्यादा शॉकिंग ऑनेस्टली है, हाँ, मतलब या टू आई थिंक सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो जैसे कहीं ना कहीं एक कुछ आर्टिकल्स ये भी थे अबाउट मी एंड विकी, तो आई वाज वेरी शॉक्ड बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर्ड हिम लाइक अ ब्रदर इन द शो, और मैं उसको बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह देखती थी, एक जेन्युइन फ्रेंड की तरह। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी आए थे कि लिंकिंग मी विथ हिम, तो वो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो तो इनसाइड द हाउस, तो जैसे बिकॉज आई एम ऑफकोर्स लिविंग इनसाइड द हाउस, सो यू डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स about the media narrative, what's going on outside, because you have no control over it. Like, you're not even outside to give any justification or to give any statement on your behalf. So whatever happens outside is like completely outside. It's beyond your control completely. तो वो चीज़ से बस एक था कि हाँ, थोड़ा सा एक थोड़ा शॉकिंग, हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो था। But then again, but लोग जानते हैं, people know that the fact regarding me that I belong to a certain profession and I have, मतलब for me to do this show only was like a, इस टॉपिक पर कभी अंकिता से कोई बात हुई थी? इस टॉपिक पर नहीं, मतलब इनफैक्ट उसके बाद भी हम मिले थे पार्टीज में, ये वो, तो शी इज ऑल्सो अवेयर यार कि वो खुद उस घर में रह चुकी है, उनको पता है कि वो कि इंसान कुछ करता है और दिखाया कुछ जाता है। सो शी इज अवेयर, थैंक गॉड उसने खुद भी बिग बॉस किया, तो उसको पता है कि आप अंदर क्या करते हो और दिखाया क्या जाता है। शायद अ पर्सन हु इज नॉट डन दिस शो प्रॉब्ली विल नॉट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली, दैट पर्सन माइट फील कि अच्छा कि प्रॉब्ली जो दिखाया जा रहा है शायद वो होगा, बट फॉर अ पर्सन हु इज लिव्ड इनसाइड द हाउस, दे नो. For anybody who's done the show, they know that whatever is being
projected or portrayed outside is definitely not entirely true. Sometimes, you know, clip or portion इस तरह से दिखाया जाता है to probably sometimes, you know, for your TRP boosting, क्योंकि ultimately they have to run the show, है ना, and we are inside enjoying the experience, है ना. हम लोग को तो पता भी नहीं कि कभी-कभी उनके TRP के लिए हमारी लाइफ को स्टेक पे रखा जा रहा है. Our life is put at stake for their TRP. That also is a very common phenomena. तो ये चीज़ है, तो वो तो चीज़ also very chilled out, and she said also अरे ये सब चीज़ें तो दिखाई जाती है, ये वो and all. In fact, I met her mother also after the show and all. क्या कहा उन्होंने? हाँ, she's also quite cool. Ankita's mother is also quite cool. In fact, Ankita also congratulated me also after watching my Netflix web series, and she video called me and she's like, you know, I really liked it. She's like, अभी क्या actress बनना है ऐसा ना? She's asking me like that. अपने, you know, अपने cool अंदाज में she's asking me. She's quite a chilled out girl. तो सो ऑफकोर्स वो भी अंदर थी, वो अंदर देखती थी. हमारा टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता था हमारा, तो ऐसा था. एंड पीपल एंजॉयड आवर बॉन्ड ऑल्सो. हम दोनों का, सबको मजा आया हम दोनों का बॉन्ड, क्योंकि हम दोनों झगड़ते थे ज़्यादा इस वजह से. हम लोग का बट बाहर आने के बाद एकदम अपोजिट हो गया रिलेशन. जैसे कि अंदर टॉम एंड जेरी की तरह जो लड़ते थे, बट बाहर आने के बाद एकदम वो अच्छी ट्यूनिंग हो गई दोनों की. अच्छी ट्यूनिंग हो गई, हाँ. क्योंकि कैसे अभी से आई एम अ मैच्योर प्रोफेशनल, ही इज़ ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल गाय. हम दोनों का इंटेलेक्चुअल मैच होता था, इसलिए कहीं ना कहीं हम दोनों इतना बात करते थे और इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि हमारा वो इंटेलेक्चुअल लेवल वैसा है कि हम कोई बचकाने इमेच्योर लोग नहीं कि बाहर आए अरे बिग बॉस में तुमने ये किया था, बिग बॉस में तुमने ये किया था, वो लेके हम बाहर रहे. मेरी अपनी अलग इतनी लाइफ है, मुझे क्या क्या करना है ना. तो अभी उस चीज़ में हम थोड़ी ये सब ग्रज होल्ड करेंगे, ये सब चीज़ें. और अंदर भी जो झगड़े होते थे आपने देखा होगा, हमारे इमीडिएटली सॉल्व भी हो जाते थे. इमीडिएटली वी वुड सॉर्ट आउट, एंड देन समटाइम्स दैट वुड बिकम अ टॉपिक ऑफ ऑफ डिस्कशन, दैट दे फाइट एंड देन दे इमीडिएटली देन दे स्टार्ट टॉकिंग ऑल्सो. दे कांट फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ऑल्सो सना, आपने कोई ऐसी हाई प्रोफाइल केस रही है आपकी लाइफ में जो आपने रिजेक्ट किया हो? जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि आप बहुत चूजी हैं केस के मामले में. कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल केस है जो आपने नाम रिजेक्ट किया है? नाम बोलना तो थोड़ा सा, इनफैक्ट एक एक्टर का ही केस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक एक्टर का ही था. उस टाइम पे उसके ऊपर एलिगेशंस थे कि उसने अबेट किया है सुसाइड किसी का. तो हाँ, बहुत रिसेंट ही है वो, 1-2 साल पहले की, शायद 1-1.5 साल पहले की बात है. हाँ, उस टाइम पे मतलब कुछ काफ़ी शायद ऐसे कहा जा रहा था कि गर्लफ्रेंड का सुसाइड इनके वजह से हुआ है ये वो. और ऐसे काफ़ी केसेस है. मैंने बहुत, इनफैक्ट यू नो दैट इज़ द स्पेशलिटी अबाउट मी कि मैं हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल देख के केस नहीं लेती हूँ. मैं केस पहले, इनफैक्ट फॉर इंद्रानी ऑल्सो आई टोल्ड हर यू सेंड अक्रॉस योर फाइल, क्योंकि वो केस तो अगर आप देखो तो इंडिया में सबसे बड़ा केस है, इंडिया का सबसे बड़ा मर्डर केस है. वो केस तक को मैंने बोला यू सेंड योर फाइल, लेट मी गो थ्रू इट एंड देन आई विल डिसाइड वेदर आई विल टेक इट अप और नॉट. बिकॉज व्हेन शी कॉल्ड मी, शी अप्रोच्ड मी, शी टोल्ड मी वेदर यू विल टेक इट अप. आई सेड यू सेंड योर फाइल, आई विल डिसाइड. तो मैं केस पढ़ के देखने के बाद, और कहीं ना कहीं मेरा खुद के मॉरल्स प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रख के मैं केस लेती हूँ. ऐसा नहीं है कि अगर हाई प्रोफाइल है तो ये वो, क्योंकि मुझे मीडिया अटेंशन ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आई एम यूज्ड टू इट एवरी डे. एवर सिंस आई जॉइन दिस प्रोफेशन आई बीन फेसिंग मीडिया, आई बीन फेसिंग कैमरा, एंड मुझे काफ़ी अटेंशन मिल चुका है. आई एम ऑलरेडी क्वाइट अ नेम, सो आई डोंट नीड फॉर कभी किसी हाइप या पब्लिसिटी के लिए मुझे कोई केस लेने की ज़रूरत नहीं. बिकॉज आई एम माशाल्लाह से टचवुड, आई एम ऑलरेडी अ नेम एंड आई हैव अक्वायर्ड रिकग्निशन इन द नेशन गुड इनफ. इनफैक्ट आफ्टर द शो, आफ्टर बिग बॉस ऑल्सो, यू नो, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज तो इंटरनेशनली भी काफ़ी चली. इवन व्हेन आई गो अब्रॉड ऑल्सो, यू नो, लंडन में ये वो, तो लोग, यू नो, people know about the Sheena Burra case worldwide. It's not just in India, you know, it's like worldwide, and because of the Netflix web series now, all over the world people are aware. So, you know, I get appreciated for that even outside also, when I'm traveling abroad also. सो इसीलिए तो मैं कभी कोई ऐसा नहीं है कि कितने बार मैंने काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस रिजेक्ट भी किए हैं जब मुझे लगा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू डिफेंड दिस पर्सन. ऐसा भी हुआ. आई एम चूजी एंड आई एम वेरी पिकी. सो सना, मुझे ये भी जानना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पास समीर वानखेड़े का भी केस है. क्या चल रहा है उस केस में अभी? सो आई एम डिफेंडिंग हिम, एंड यू नो, वी हैव फाइल्ड अ रिट पिटिशन अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज इन्होंने, समीर वानखेड़े जी ने एफआईआर रजिस्टर की थी एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट. 2 साल पहले एफआईआर हुई थी, बट आज तक ना ही वो अरेस्ट हुए हैं और ना ही कोई यू नो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है इन द इन्वेस्टिगेशन, ना ही आज तक चार्जशीट फाइल हुई है. सो वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट फॉर, यू नो, सीकिंग प्रेयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड वी हैव ऑफ कोर्स सेट आउट अ लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ पॉइंट्स. ऑलरेडी वी हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन द पिटिशन ऑलरेडी. तो ये सारी चीज़ें तो अभी ऑलरेडी हमने उठाई है आवाज़. तो
ऑफ कोर्स फेयर इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू नो, फेयर ट्रायल, जैसे फेयर ट्रायल पे मैं हमेशा जोर डालती हूँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर किसी ने केस किया है तो ऐसा तो है नहीं कि बस केस दर्ज किया और केस को साइड में रख दो, वो नहीं होना चाहिए. आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और आपको स्टेटस रिपोर्ट, ये सब चीज़ भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें से भी इन्फॉर्म करो क्लाइंट को कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो येस, सो आई एम एंड ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन एंड आई एम डिफेंडिंग हिम राइट नाउ. या सो क्या लग रहा है आपको केस में आगे क्या हो सकता है? हाँ, तो अभी तो हमने रिट पिटिशन डाला है और हम अपनी अभी ऑफ कोर्स गोइंग टू रेज ऑल आवर पॉइंट्स बिफोर द डिवीजन बेंच इन द हाई कोर्ट आल्सो. सो अब जब आप इस केस में आ गई हैं तो मतलब कि जो अरेस्ट 2 सालों से रुका हुआ है वो उसके भी चांसेस है? ये मतलब होपफुली वी आर डेफिनेटली डिमांडिंग अ फेयर इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंटली एंड वी आर होपिंग कि इसमें सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हो इन द इन्वेस्टिगेशन इन द केस. अब तो सना लाइफ में सब कुछ मिल गया आपको, फेम भी मिल गया है, ग्लैमर तो आपके पास है ही भर भर के, बट एक लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी होता है. ऐसा आप, आई डोंट नो आप इनमें बिलीव करती है कि नहीं लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है, बट अगर सना की लाइफ में जो भी आएगा वो क्वालिटीज़ क्या देखेंगी आप? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वुमन को संभालना बहुत बड़ा एक काम होता है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है, हमारे जो आसपास के लोग भी ऐसे कहते हैं कि अगर मर्द से ज़्यादा जो औरत है ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो उन्हें हैंडल नहीं कर पाते वो, और वो रिश्ता नहीं टिक पाता. सो सना इन चीज़ों को कैसे देखती है ना? आपकी लाइफ में कैसा बंदा चाहिए आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आई डू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज माशाल्लाह टचवुड मेरी फैमिली में हर किसी की मैरिज सक्सेसफुल रही है. माई पेरेंट्स ऑल्सो लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. और इवन मैंने देखा है मेरी फैमिली में हमेशा सबकी माशाल्लाह मैरिज इज वर्कड. तो ऑफकोर्स आई हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, but at the same time I'm also like right now I'm determined to like continue ahead the way I'm doing. ऐसा मुझे कोई haste या हरी नहीं है for marriage right now because I belong, like fortunately I belong to a very broad minded family जहाँ पे मेरे फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे करियर में परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी दी. मुझे जो मुझे फील होता है कि मुझे ये करना है तो मुझे वो मौका दिया गया, मुझे वो चॉइस परस्यू करने का मौका मिला. एंड आई वॉज नेवर ट्रीटेड एनी डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर ऑल्सो बिकॉज आई हैव एन एल्डर ब्रदर, आई हैव ग्रोन अप विथ हिम. बट मुझे कभी ऐसा कोई जेंडर डिफरेंस फील भी नहीं हुआ. इनफैक्ट आई वॉज पैम्पर्ड मोर एंड आई वॉज गिवन मोर लव एंड अफेक्शन. और कहीं ना कहीं मेरे तरफ ज़्यादा बायस और पार्शियल रहे तो मेरे भाई बेचारे को इनफैक्ट ऐसा रहा है कि कभी कभी वो बोलेगा कि अरे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, मेरे फैमिली ने ऐसे किया. मुझे बहुत प्यार और हर जगह मुझे ऐसा ही फील, कभी मुझे डिफरेंस फील ही नहीं हुआ कि भाई बहन लड़का लड़की का, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिला हर जगह. जैसा मेरे भाई को मिलता था मुझे मिलता था. इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर मैं पली बड़ी हूँ, मैं वैसी होके. तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी दैट फॉर द गाय टू बी एबल टू हैंडल माई सक्सेस, to be able to understand my work, I mean, of course, I would want the guy also to be, to be equally. I mean, of course, see, I will not lie and I will not say कि ठीक है, मतलब honesty और ये सारी चीज़ें, quality, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब तो ठीक है. But I think for it's very important कि the guy has to be independent enough, the guy also has to be financially stable enough to, because even if I'm working tomorrow, even if I'm self dependent और मैं self reliable भी रहूँ, तो कल को फिर चिल्ड्रन भी होते हैं, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. तो आई वुड ऑफ कोर्स वांट द गाय आल्सो टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टुवर्ड्स द फैमिली एंड ही शुड आल्सो बी हंग्री टुवर्ड्स ग्रोथ एंड टुवर्ड्स एक होता है ना कि इंसान को बढ़ना है, ग्रो होना है. जो ऐसा इंसान अगर ऐसी मेंटालिटी वाला होता है ना, तो बीवी भी ग्रो होती है. अगर वुमेन या इफ योर वाइफ इज ऑल्सो ग्रोइंग, दैट पर्सन विल नेवर फील इनसिक्योर, दैट पर्सन विल बी ओनली हैप्पी फॉर योर ग्रोथ. तो वो एक इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है. दैट एंड दैट यूजुअली कम्स ओनली व्हेन द अदर पर्सन इज ऑल्सो सक्सेसफुल, ईदर एज सक्सेसफुल एज यू. या सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सना आपसे, बिग बॉस करके क्या आपको किसी भी तरह का रिग्रेट है कि मैंने क्यों किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज माशाल्लाह see, everything is based on your attitude. Life is all about 10% what happens to you and 90% what you actually bring out of it. It's ultimately like that. Even when I went inside the house, everybody was questioning, अरे इसको क्या ज़रूरत थी शो में जाने की, शी सच अ बिग लॉयर, उसको क्या ज़रूरत है बिग बॉस करने की, इसने अपने करियर का बैड डिसीजन शायद ले रही है बिकॉज केस नहीं मिलेगा. ऐसा तो कभी कुछ नहीं आया, बिकॉज ऑनेस्टली ऐसा तो नहीं हो सकता कि केस ना मिले, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं आपका और उल्टा कहीं ना कहीं अवेयरनेस होती है, लोग और जानने लग जाते. मुझे नेशन वाइज उल्टा और रिकग्निशन मिली और अवेयरनेस, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ऑफकोर्स
एज अ लॉयर आई वाज ऑलवेज वेरी फेमस इवन इन बॉम्बे, दिल्ली, क्योंकि मेरी बॉम्बे की प्रैक्टिस और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की है, पर वो एक रीजनल, अगर आप देखो छोटे छोटे गाँव में भी लोग ये शो देखते हैं ना, हर एक छोटे छोटे रीजन, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह ये शो चलता है, तो वो एक नेशन वाइड रिकग्निशन तो मिल जाती है. It's always, I mean, it always depends on how you conduct yourself on the show and the dignity with which you remain. I mean, conduct yourself even outside the show after coming out also. So for me, in my case, again, if you see my attitude, inside the show also, I was taking the show like a show, not like life कि मैं इतनी कभी desperate नहीं दिखी show के लिए. I was like very chill out, dignified तरीके से थी. मुझे पता था कि show के लिए मुझे इतना invest नहीं करना, मुझे बाहर जाके मेरा profession भी देखना है, बाहर मेरी बहुत बड़ी जिंदगी की बाहर है ना. And of course, I'm again, you know, even sometimes judges also watch the show, so I'm again aware of the fact, you know, कि ये सब चीज़ें सब कैमरा पे है. So I'm again very, I was always cautious and aware of the fact of my surrounding, because कभी कभी मैं देखती थी कुछ contestants they forget about the outside world, वो भूल जाते थे, वो ऐसे you know, अगर आप देखते हो बहुत ओवर ड्रामेटिक हो जाएंगे, कुछ बहुत ही ऐसी हरकत अजीब कर देंगे. तो मैं सोचती थी ना, you would actually tell them later also कि यार तुझे बाहर भी जाना है शो के बाद, it's not just like the end of the world. तो मैं I would tell them. तो मैं हमेशा I was always having, I mean I always stayed in touch with the fact that okay, this may be called a reality show, but this is not reality. The real world is outside. You have to go out and you have to face the world. So touchwood, mashallah, in my case again, you can again आप एटीट्यूड के तरीके से आप देख सकते हो, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा. मैं अंदर भी काफ़ी डिग्निटी के साथ थी, डिग्निफाइड वे के तरीके से खेली. इनफैक्ट सलमान ऑल्सो सेड कैटेगोरिकली वेल प्लेड. ही सेड दैट, यू नो, जो बहुत रेयरली वो किसी के लिए कहते हैं. व्हाइल आई वाज कमिंग आउट ही सेड कैटेगोरिकली सना वेल प्लेड. तो मैं बहुत रिस्पेक्ट से रही, रिस्पेक्ट से बाहर भी है. और मैं बाहर आने के बाद भी, अगर आप देखो, मैंने सारे जो केसेस, मैं उसके बाद भी मैं बिल्कुल भी बदली नहीं टूवर्ड्स माई प्रोफेशन. ऐसा नहीं कि मैं आई, मैंने बाहर देख लिया इतना नेशन वाइड फेम, पैन इंडिया फेम देखने के बाद हे बाय बाय लीगल प्रोफेशन, हेलो ग्लैमर इंडस्ट्री, वो नहीं किया मैंने. मैं बाहर आने के बाद भी आई स्टे ट्रू टू माई प्रोफेशन. आई रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ मूवी ऑफर्स ऑल्सो. तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर आने के बाद भी मैं उसी तरह से डटी रही अपने प्रोफेशन में. मैं उसी तरह आगे बढ़ी. और टचवुड माशाल्लाह, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरा प्रोफेशन में और ग्रोथ हुआ है, एंड विच इज़ एन आंसर टू लॉट ऑफ रिग्रेसिव माइंड्स एंड लॉट ऑफ नेगेटिव माइंड्स कि अरे you're making a mistake या ऐसा कुछ. So there is nothing to regret about, in fact. But again, there is nothing to boast about also कि अरे बिग बॉस क्या तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है. Again, for me it's not a big deal also. But yeah, there is nothing to regret about also, because it all depends upon how you conduct yourself in the show. Because see, ultimately show winning, losing, nobody remembers. It's just आप अपनी इमेज बचा के बाहर निकलो और अंदर किसी को बुरी तरह से अटैक या हर्ट ना करो. वो चीज़ आपकी ट्रू विक्ट्री, कि आप अपना इतना वर्स्ट, कभी कभी किसी का इतना वर्स्ट साइड दिखता है ना, कि वो इंसान अगर बहुत आगे या लंबा भी चला जाए ना, तो वो उसकी हार होती है, चाहे वो जीत भी जाए शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अगर आप डिग्निटी से रहो और आप अच्छे से रहो, आई थिंक दैट इज़ अ ट्रू विक्ट्री एंड नॉट द टाइटल. क्योंकि टाइटल लेके कोई क्या ही झंडे गाड़ता है शो में, मैं ज़िंदगी में, मैं वही कह रही हूँ. सो ऑल्सो सना, हमने ऐसा सुना था कि जिस सीज़न में आप थी बिग बॉस के, उसकी आप हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स में से एक थी. मतलब वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े टीवी सेलिब्रिटी जो अंदर ऑलरेडी थे, उनको आपने मतलब टक्कर दे दिया था. See, honestly, all I can say right now is that even when the show was offered to me also, you know, I was told that we will never be able to justify your earning outside, the amount of money that you make every week outside, to be very honest, you know, because that honestly, of course, that could never be justified. उस टाइम पे भी मुझे बोला गया था ये चीज़. ओके, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो आपको कंटिन्यू सपोर्ट ही कर रहे हैं जब से आपको जानने लगे? I mean, I am so grateful, yeah, because you know, I was not even from the industry, and despite of that, I was nominated every week, and I was saved by public votes and all. And I still come across a lot of people who say that, hey, I watched you and I really liked your personality. I loved your personality. And उसके बाद भी लोग मेरे cases भी follow करते हैं. They, you know, they still, I mean, and a lot of people are getting inspired by me. I'm seeing so many girls, you know, messaging me directly, DMs आते हैं कि because of you, I'm going to become a lawyer, you know, because you inspire me. And ये law profession for girls, if you see, तो इतना ज़्यादा अगर आप देखो तो इतनी लड़कियां ना आती थी ना, इतना आपने कभी सुना होगा ज़्यादा. But you know, to be able to bring this change also is a very positive thing for me, that now so many girls are taking the initiative to come in the profession, to join the profession, inspiring to, you know, again to somewhere I mean, I'm responsible for it, and you know, to be able to contribute to the profession also so positively is also such a good thing, because you know, so many aspirants will only contribute positively to towards the society, because the more good lawyers, the more better the society would be, right? So kahin na kahin, I really, and of course I will tell everybody that, you know,
work hard also, work smart also, be passionate, but at the same time live your life also. Don't forget to live your life, you know, क्योंकि अपनी पहचान बनाना अच्छी बात है, अपनी अपने लिए कुछ करना, to carve your own niche, of course it's very important. To be successful is also a very good feeling, but at the same time to live your life and not forget that life is short. You're not going to come out alive anyway, so don't take life so seriously कि आप जीना भूल जाओ, इसीलिए आप जीना मत छोड़ो, आप करो, मेहनत भी करो, खुश भी रहो, अपनी पहचान भी बनाओ, बट एट द सेम टाइम एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल की दुनिया में मैं देख रही हूँ स्ट्रेस प्रेशर एक अलग डिग्री पे जा रहा है और लोग भूल जा रहे हैं यार कि लाइफ है, यू हैव टू लिव ऑल्सो. ये नहीं कि सिर्फ कुछ करने के लिए आप बीच में जीने का तो मतलब आप ये तो भूल ही जाते हो कि आपको जीना भी और खुश भी रहना है और एंजॉय भी करना है. So that's why if you've seen especially people who follow me, they've seen that I take out time for everything. I balance my life. I even travel also. I'm like I'm traveling half the time and I'm working also. I'm balancing it out because it's equally important to travel, to meet new people, to get exposed to a new to broaden your horizon. And somehow this adds to your growth, and somehow enjoyment and fun is also very essential for your growth, even professionally also. So always pursue your separate hobby also, और खुश भी रहो यार, लाइफ में खुश रहो, सबसे इम्पोर्टेंट तो हैप्पीनेस है, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है. थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग, एंड आपसे बात करके सीरियसली बहुत मज़ा आया. बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई आपने जो शायद लोग नहीं जानते, एंड काफ़ी मोटिवेशन भी मिलने वाला है कई लोगों को जो आपके प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियाँ जो काफ़ी कहते हैं ना इस प्रोफेशन से भागती हैं कि यार क्रिमिनल लॉयर कैसे बन जाए. चलो लॉयर तो बनने के लिए एक बार रेडी हो जाते हैं, बट क्रिमिनल लॉयर कैसे बने वो आपका शायद ये आज का हमारा कॉन्वर्सेशन सुनकर कई लोग बन जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.